Good morning, everyone. In last lecture, we have discussed about the classification of bacteria on the basis of its shape. Shape के basis पे हमने classification पढ़ी थी bacteria की, जैसे कि कोकाई था, bacillus था, कॉमा शेप था, स्पाइरलम था, स्पाइरोकीटे था. इसके अलावा कुछ और शेप्स थी, माइसीलियम था, माइसीलियल था, बडिड फॉर्म्स थी, etc. So in today's lecture we will continue that. So today's learning objectives are in today's lecture we will discuss about classification of bacteria जो हमने कल स्टार्ट किया था उसी को कंटिन्यू करेंगे on the basis of flagella and other basis of classification is cell wall constituent. उसके बेस पे हम क्लासीफाई करेंगे बैक्टीरियाज को. So let's start. Flagella. जो flagella है that is a locomotory organ in bacteria जो कि movement में help करता है बैक्टीरिया के and it also act as a sensory organ in bacteria. अगर हम इसके साइज़ की बात करें तो इसका जो साइज़ है ये है 3 to 12 माइक्रोन मीटर. इसके लेंथ है और as we know these are filamentous thread like structures होते हैं surface appendage, surface के ऊपर लगे होते हैं bacterial cell के. In addition to this, on the basis of this flagella, जो bacterias हैं वो बहुत तरह के होते हैं that we will discuss one by one. So first type is Atrichus. Atrichus, as the name indicates, A means without, trichus means hair-like structure, trichome is hair-like structure. So these are the bacteria which lacks flagella, means उनमें कोई भी flagella present नहीं होता है. So bacteria which lack flagella उनको बोलते हैं हम Atrichus. And the examples are Lactobacillus, Corynebacterium, diphtheria. So these are two examples. There are many other examples, but यहाँ पे दो examples हैं, Lactobacillus है, Corynebacterium, diphtheria है. So there is an image जिसमें हम सभी तरह के जो flagellar arrangements है उसके basis पे classification है वो discuss करेंगे. So this picture is the first one is Atrichus, which shows the bacteria without any flagella. Then second is Monotrichus that we'll discuss in the next slide. Mono means single, trichus means hair-like structure, single flagellum at one end, Amphitrichus, two flagella but up at opposite ends, one at each end. Lophotrichus means tuft of flagella at one end. So we can see एक group of flagella है एक end पे. Peritrichus, peri means surrounding, so पूरे के पूरे जो cell surface पे uniformly distributed होते हैं flagella. So this is called Peritrichus. So next slide we will discuss one by one. So next is polar or monotrichus. Polar or monotrichus. Mono means single, means जिसमें कि एक ही flagella एक ही end पे होता है, like this one. This is called monotrichus. इसका example है Vibrio cholerae जो coma shape हमने कल bacteria पढ़ा था, and Pseudomonas. Next is cephalotrichus. Cephalo means head-like structure. So a tuft of flagella at one pole is commonly known as cephalotrichus. So this one is cephalotrichus. This one is Lophotrichus. This is cephalotrichus. Cephalo means head, trichus means tuft of hairs. So ऐसे बैक्टीरिया जिनके एक एंड पे बहुत सारे ग्रुप ऑफ फ्लैजेला होते हैं उसको बोलते हैं हम cephalotrichus, and its example is Pseudomonas fluorescens. नेक्स्ट इज एम्फीट्राइकस. एम्फीट्राइकस में जो बैक्टीरिया के दोनों एंड्स पे एक एक फ्लैजेला प्रेजेंट होता है, इस तरह के जो बैक्टीरिया हैं उनको बोला जाता है एम्फीट्राइकस बैक्टीरियाज. देन नेक्स्ट कम्स लोफोट्राइकस. लोफोट्राइकस के केस में टफ्ट और ग्रुप ऑफ फ्लैजेला प्रेजेंट होता है दोनों एंड्स में. सो दिस इज द लोफोट्राइकस बैक्टीरियम एंड इट्स एम्फीट्राइकस का जो एग्जाम्पल है दैट इज नाइट्रोसोमोनास. नाइट्रोसोमोनास जो कि हम पढ़ते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन में बैक्टीरिया हेल्प करता है. और लोफोट्राइकस का एग्जांपल है हमारे पास स्पाइरलम वोल्यूटेंस.
नेक्स्ट इज पेरीट्राइकस। पेरी मीन्स सराउंडिंग, तो ऐसा बैक्टीरिया जिसके सेल सरफेस पे चारों तरफ फ्लैजेला प्रेजेंट होते हैं, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, उस तरह के बैक्टीरिया को बोला जाता है पेरीट्राइकस। और इसका एग्जांपल है हमारे पास ई कोलाई एंड साल्मोनेला टाइफी। So this is all about the flagellar arrangement or flagellar classification of bacteria. Next classification is on the basis of wall components, cell wall component. जो cell wall components हैं, डिटेल में हम उसके बारे में cell structure में पढ़ेंगे. Now we will focus on classification just. So जो cell wall के components है उसके बेस पे जो bacterias हैं वो दो तरह के होते हैं. First is gram positive and second one is gram negative. So let's discuss this. So this technique of we call it as gram positive or gram negative because क्योंकि इसमें जो हम एक staining procedure use करते हैं that was developed by the scientist Sir Hans Christian Gram. So that's why this is called gram staining. और इसके बेसिस पे जो बैक्टीरिया को क्लासीफाई किया जाता है उसको हम ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बोलते हैं. So gram staining, this technique was developed by Sir Hans Christian Gram in 1880. Hans Christian Gram ने ये टेक्निक डेवलप की थी 1880 में. इसमें इस टेक्निक से होता क्या है, मैंने जैसे पहले बताया आपको, इससे हम डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को जो कि पर्पल कलर देगा और gram negative bacteria which will give on pink color that we will discuss later on in next slide. So this technique is used to differentiate two large groups of bacteria on the basis of their cell wall constituents. So cell wall के constituent के base पे हम bacteria को classify करते हैं. Next steps जो इसमें involved होते हैं that we will discuss one by one. In first step सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो बैक्टीरिया का स्मीयर है, बैक्टीरिया का जो वी कैन से सॉल्यूशन लाइक सब्सटेंस है जिसमें बैक्टीरिया बहुत सारे होते हैं, वी विल स्मीयर इट ऑन स्लाइड के ऊपर इसको स्मीयर करेंगे. देन वी विल स्टेन इट विद डाइल्यूट अल्कलाइन सॉल्यूशन. जो इसमें डाइल्यूट अल्कलाइन सॉल्यूशन यूज़ किया जाता है दैट इज़ ऑफ क्रिस्टल वॉयलेट. सो दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम हियर. बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो ग्राम स्टेनिंग है, ग्राम स्टेनिंग का प्रोसीजर है, उसमें कौन सा स्टेन यूज़ किया जाता है, कौन सी डाई यूज़ किया है. सो दिस इज़ द क्रिस्टल वॉयलेट, दिस इज़ द स्टेन विच इज़ यूज्ड इन दिस टेक्निक. सो बैक्टीरिया का जो स्मेयर है उसके ऊपर हम अल्कलाइन सॉल्यूशन और क्रिस्टल वॉल डालते हैं और उसको 1 मिनट तक रहने देते हैं. इसके बाद इसके रिज़ल्ट से जो बैक्टीरिया हैं, सभी के सभी बैक्टीरियाज इर्रिस्पेक्टिव ऑफ ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव, सभी के सभी जो बैक्टीरिया हैं दे ऑब्टेन ब्लू कलर. सारे के सारे जो बैक्टीरिया हैं दे लुक्स ब्लू इन कलर. देन उसके बाद जो ये ब्लू कलर के बैक्टीरियाज हैं उनको हम फिर से ट्रीट करते हैं 0.5% आयोडीन सोल्यूशन के बारे में साथ, आयोडीन सोल्यूशन के साथ ट्रीट करते हैं और उसके बाद उसको साफ़ करते हैं हम पानी के साथ. इन नेक्स्ट स्टेप जो बैक्टीरिया हैं दे विल टेक डीप वॉलेट और पर्पल स्टेन. जब आयोडीन का सोल्यूशन डालते हैं उसके बाद जो सारे के सारे बैक्टीरिया हैं या तो वो डीप वॉलेट कलर ऑब्टेन करेंगे या फिर पर्पल स्टेन ऑब्टेन करेंगे. एंड आफ्टर दैट इस स्टेप के बाद सभी के सभी जो बैक्टीरियल स्मीयर है, पूरा का पूरा स्मीयर है, दैट इज़ वॉश्ड विद 90% एल्कोहल. जो एल्कोहल है उससे साफ़ कर देते हैं. सो दिस इज़ द लास्ट स्टेप. इसी स्टेप से ये क्लियर होता है कि कौन से बैक्टीरियाज कलर को रिटेन रख पाते हैं, पर्पल कलर को, और कौन से बैक्टीरिया में जो पर्पल कलर है वो निकल जाता है. सो दोज बैक्टीरियाज विच आर एबल टू रिटेन देयर पर्पल कलर उसको बोला जाता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, और जो नहीं कर पाते हैं दे आर नोन एज ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया. सो बैक्टीरिया विच रिटेन द स्टेन आर कॉल्ड ग्राम पॉजिटिव, और जो स्टेन नहीं को रिटेन नहीं कर पाते हैं दे विल लूज देयर कलर, उनको बोला जाता है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज. बट जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है उनको स्टेन करने के लिए हम यूज़ करते हैं सैफ्रोनिन या फिर एसिटोकार्बिन. सैफ्रोनिन यूज़ किया जाता है वैसे. So this is all about the procedures, steps involved in bacterial
स्टेनिंग टेक्निक, दैट इज ग्राम स्टेनिंग। नेक्स्ट स्लाइड में हम पिक्चर्स देखते हैं। सो जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, फॉर एग्जांपल स्टेफाइलोकोकस ऑरियस है, ग्राम नेगेटिव ई कोलाई है। इसमें जो प्रोसीजर है, पहला स्टेप में हम क्या करते हैं, एल्कलाइन डाई डालते हैं, दैट इज क्रिस्टल वॉयलेट, जिसके डालने से दे विल रिटेन ब्लूइश कलर। जो सारे बैक्टीरियाज हैं, चाहे वो नेगेटिव हैं या पॉजिटिव है, सभी दे विल obtain ब्लू कलर। देन इन नेक्स्ट स्टेप हम उसमें डालेंगे 0.5% आयोडीन सॉल्यूशन, जिससे कि डीप ब्लू और डीप पर्पल कलर obtain करेंगे बोथ बैक्टीरियाज, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। थर्ड स्टेप में हम यूज़ करते हैं 90% अल्कोहल। आफ्टर एडिंग अल्कोहल के डालने से जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैं दे रिटेन देयर कलर, और जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैं, जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैं वो अपना कलर रिटेन करते हैं, और जो नेगेटिव हैं दे लूज देयर कलर। एंड आफ्टर दैट दे आर ट्रीटेड विद सैफरनिन के साथ ट्रीट किया जाता है, एंड दे विल गिव this red color, while the gram-positive bacteria retain their purple color. So this is the technique. These are the various steps involved in gram staining. This is again the same picture. First crystal violet use करेंगे, उसके बाद iodine solution 0.5% use करेंगे, then we will use this alcohol for decolorization. And जो bacterias color को retain कर पाते हैं, they are common known as ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, और जो कलर को ऑब्टेन नहीं कर पाएंगे दे आर नोन एज ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। सो दिस इज द पिक्चर विच शोज ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। जो ये लेफ्ट हैंड साइड की पिक्चर है, इसमें हमें पर्पल कलर के जो स्मॉल डॉट्स दिख रहे हैं, दे आर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियाज। और ये जो राइट हैंड साइड में पिक्चर है, दैट शोज द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज विद लाइट पिंक कलर। सो दिस इज ऑल अबाउट द ग्राम स्टेनिंग टेक्निक। जो ये डिफरेंस आता है, इट इज़ बिकॉज जैसा कि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, ये जो क्लासिफिकेशन है इट इज़ बेस्ड ऑन सेल वॉल कॉन्स्टिट्यूएंट। सो यहाँ पे इस स्लाइड से क्लियर हो जाएगा कि सेल वॉल कैसे वेरी करती है इनमें। सो जो ये डिफरेंस है, दैट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया। जो ग्राम स्टेन है उसमें हम क्रिस्टल वॉयलेट स्टेन यूज़ करते हैं सेल वॉल को स्टेन करने के लिए, और आयोडीन एक्ट करता है एज अ मॉर्डेंट। और उसके बाद जो फुटसिन और सैफरनिन है उसको हम काउंटर स्टेन की तरह यूज़ करते हैं टू मार्क ऑल द बैक्टीरियाज। सो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में क्या खास बात है, इनकी जो सेल वॉल होती है इट इज़ मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन। पेप्टाइडोग्लाइकन से मिलकर बनी होती है। ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे सेल स्ट्रक्चर में, जब सेल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे बैक्टीरिया का। लेयर्स अराउंड द सेल वॉल, जो सेल वॉल है, सेल वॉल के बाहर पेप्टाइडोग्लाइकन की लेयर प्रेजेंट होती है। और ये जो लेयर है, दिस वन, ये जो लेयर है, इट इज़ एबल टू रिटेन द प्राइमरी स्टेन, दैट इज़ क्रिस्टल वॉयलेट। आफ्टर डीकलराइजेशन विद अल्कोहल, अगर अल्कोहल डालने के बाद भी ये जो लेयर है पेप्टाइडोग्लाइकन की, इट इज़ एबल टू रिटेन द पर्पल कलर। वाइल इन केस ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में थिन होती है पेप्टाइडोग्लाइकन की लेयर, दिस इज द डिफरेंस। जबकि जो ग्राम पॉजिटिव है उनमें थिक वॉल होती है। यू कैन सी हियर दिस ग्रीन, जो ये ग्रीन कलर की लेयर है, इट इंडिकेट्स दिस पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर। जो ग्राम पॉजिटिव है इसमें ये थिक वॉल है, और जो ग्राम नेगेटिव है इसमें ये थिनर है एज कम्पेयर टू ग्राम पॉजिटिव। सो इट इज़ नॉट एबल टू रिटेन द क्रिस्टल वॉयलेट स्टेन। इन एडिशन टू दिस, ये जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज हैं इनमें एक थिक लिपिड लेयर होती है विच डिजॉल्व ईजली अपॉन डीकलराइजेशन। ये जो लेयर है, आउटर मेम्ब्रेन है, ये बनी होती है लिपिड की। जैसे ही हम इसमें अल्कोहल डालते हैं, एसीटोन डालते हैं, इससे जो डीकलराइजेशन है ईजिली हो जाती है और कलर को ये रिटेन नहीं कर पाते हैं। सो जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है उनमें पेप्टाइडोग्लाइकन के अलावा ये जो लिपिड की लेयर है दैट इज़ आल्सो प्रेजेंट, और जो पेप्टाइडोग्लाइकन की लेयर प्रेजेंट होती है दैट इज़ वेरी थिन। सो देयरफॉर द सेल्स विल बी काउंटर स्टेन। इसकी वजह से ही इसमें जो ग्राम नेगेटिव के सेल्स हैं उसको हम काउंटर स्टेन करते हैं विद द हेल्प ऑफ सैफरनिन, जिसकी वजह से इसका कलर हमें दिखता है पिंक कलर। सो दैट इज़ द डिफरेंस in the cell wall components of gram positive and gram negative bacteria. The next technique is Ziegel-Nielsen staining technique. ये जो टेक्निक है ये उन बैक्टीरियाज को स्टेन करने के लिए यूज़ की जाती है जिनमें सेल वॉल एब्सेंट होती है।
So this is a technique which is used to stain acid fast bacilli, that is AFB. इसमें आता है हमारे पास Mycobacterium and Corynebacterium which have covering of waxy or fatty material on their walls. जो इसमें जो covering होती है waxy covering होती है और fat like substance की covering होती है around their cell wall. Cell wall इसमें present होता है. That do not stain with standard laboratory staining. जो ये जो बैक्टीरियाज हैं जो स्टैंडर्ड स्टेनिंग प्रोसीजर्स हम यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल ग्राम स्टेनिंग, उस स्टेनिंग प्रोसीजर से ये स्टेन नहीं किए जाते हैं. सो दैट्स व्हाई वी यूज़ दिस अनदर टेक्निक विच इज़ ज़ीहल-नील्सन स्टेनिंग टेक्निक. सो इसके जो स्टेप्स हैं वो हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करते हैं. सो इन फर्स्ट स्टेप स्मीयर का बनाएंगे. जो बैक्टीरिया का स्मीयर है उसको हम स्लाइड के ऊपर रखेंगे एंड वी विल कवर इट विद कार्बोफिशियन स्टीम. इसको कवर करेंगे और इसको रखेंगे हम बॉइलिंग वाटर के ऊपर. उसके बाद इसमें ऐड करेंगे हम स्टेन इफ़ बॉयल्स ऑफ. अगर बॉइलिंग को बंद करके इसमें हम स्टेन डालेंगे. देन इन सेकंड स्टेप आफ्टर स्लाइड हैज़ कूल्ड इसको हम डीकलराइज करेंगे एसिड और अल्कोहल के साथ 15 से 20 सेकंड के लिए. सेकंड स्टेप में हम इसमें एसिड या फिर अल्कोहल डालेंगे जिससे इसमें डीकलराइजेशन हो जाएगी, जो कलर है वो उससे रिमूव हो जाएगा. इन थर्ड स्टेप इसमें हम डीकलराइजेशन को रोक देंगे और इसको फिर हम रिंस करते हैं वाटर के साथ. देन इट इज़ रिंस्ड विद वाटर. इन फोर्थ स्टेप इसको हम फिर से काउंटर स्टेन करते हैं बाय यूजिंग अदर केमिकल सब्सटेंस, दैट इज़ मिथाइलिन ब्लू. एक डाई है ये. It is used to stain fungal hyphae also. इसको 30 सेकंड के लिए रखेंगे. Then in fifth step we will rinse briefly it with water. फिर से पानी के साथ इसको साफ़ करेंगे जिससे कि जो excessive मिथाइलिन ब्लू है वो यहाँ से रिमूव हो जाए. In next step इसको जो स्टेन है उसको हम ड्राई करेंगे with paper, some blotting paper like substance like paper, blotting paper, और इसको फिर हम एग्जामिन करेंगे under microscope. So this is all the steps involved in this Zyhal-Nielsen acid fast staining procedure. इसमें जो pink bacilli हैं acid fast bacteria bacilli, for example Mycobacterium tuberculosis long cylinder bacilli हैं. and जो इसमें differentiation होता है staining के बाद, एक जो बैक्टीरियाज हैं जो पिंक कलर के होंगे एंड सेकंड विल बी ऑफ ब्लू कलर बैक्टीरिया. एंड माइकोबैक्टीरियम लेप्रे शॉर्ट थिक बेसिलाई. इन एडिशन टू दिस ब्लू कलर जो बैक्टीरिया हैं ये हैं नॉन एसिड फास्ट. पिंक कलर वाले हैं एसिड फास्ट बैक्टीरियाज और जो ब्लू कलर वाले हैं दे आर नॉन एसिड फास्ट बैक्टीरियाज. मीन्स वो ये स्टेन को एब्जॉर्ब या रिटेन नहीं रख पाते हैं. दीज आर कॉमनली फॉर एग्जांपल इन एपिथेलियल सेल, पस सेल और अदर बैक्टीरिया. जो एपिथेलियल सेल में हैं बैक्टीरियाज और फिर पस सेल में बैक्टीरियाज हैं वो नॉन एसिड फास्ट बैक्टीरियाज हैं. So this is all about the technique of this Zyhal-Nielsen acid fast staining procedure. So this is all about today's lecture. Thank you. Have a nice day.